Today we shall complete chapter 6 of Vista's book, On the Face of It, written by Susan Hill. As you see the name of the chapter, On the Face of It, here the writer wants to say that in our life, on the face of it, everything seems right. अगर हम ऊपर से देखें ऑन द फेस ऑफ इट, फेशियल वैल्यू देखें, एवरीथिंग सीम्स राइट, बट इट इज़ नॉट सो. The writer wants to say that appearances are deceptive. The writer wants to show that appearance are generally deceptive. जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है. On the face of it, everything seems to be all right, but actually it is not so. The sense of alienation gives much pain than any physical impairment. The author wants to say that the sense of alienation means loneliness, sense of loneliness. When you avoid people, when you are far away from people, gives much pain than the physical impairment. Physical impairment से, physical handicapness से इतनी पेन होती है वो कम है, बल्कि सेंस ऑफ एलिनेशन जो है वो ज़्यादा पेन देता है. The author wants to prove this thing with the example of these two persons, those who are physically disabled. Here we talk about Derry. His name is Derry, a boy of 14 years old whose half face was burnt. उसका जो चेहरा जो है वो जल गया था due to acid attack, acid fall. His face was burnt. उसका जो चेहरा जो वो जल गया था. And here we see another person, Mr. Lamb. ये है Mr. Lamb who has a tin leg. Who has a tin leg. जिसकी एक टिन की लेग है. His one leg was blown off in an explosion. So let us see the story. In the play On the Face of It, Susan Hill wants to convey that a physical impairment is always painful. Impairment means disability. It makes one pessimist. इससे जो है वो लोग निराश हो जाते हैं. And even cynical in the face of neglect by others. Cynical nature के वो बन जाते हैं. Its pain is often less than the sense of alienation felt by a disabled person. Its pain. Which pain? Its pain means pain of physical impairment. Pain of physical impairment is less than the sense of alienation. Alienation, I said, when you are far away from people, when you stay alone, when you don't want to go in the company of people. A person with a disability wants others. Actually, the person, those who are disabled by their bad luck, they want others to treat him normally without showing any overt concern or pity. They don't want to be treated specially. Actually, they want that people should treat them as normal as they have been treating the normal persons. They don't want their concern or pity. उन्हें ये नहीं होता कि उनके ऊपर कोई दया करे, उनकी चिंता करे. जस्ट दे वांट दैट एवरीबडी शुड ट्रीट देम like normal. Let us see the story now, what the author wants to say in the story. The story the play has been divided in 3 parts. The play has 3 scenes. In the opening scene, we come to know that Derry, the young boy, has entered Lamb's garden by climbing the wall, though the garden door is open. फर्स्ट पार्ट में हम ये स्टोरी जहाँ से स्टार्ट होती है, डेरी जो है मिस्टर लैम के गार्डन में एंटर करता है बाय जंपिंग द वॉल, ऑल्दो द डोर इज ऑलवेज ओपन. ही इज स्टार्टल्ड टू सी मिस्टर लैम, एन ओल्ड मैन. वो हैरान हो जाता है कि वहाँ पर, बिकॉज इट वॉज इंटेंशन दैट ही इज़ गोइंग टू ए गार्डन वेयर नो वन वॉज देयर, बट ही वॉज स्टार्टल्ड. स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज टू सी मिस्टर लैम, an old man before him, as he has expected no one in the garden. He assures Lamb that he has not come to steal anything. वो उसे विश्वास दिलाता है कि वहाँ कोई चोरी करने नहीं आया. And says that he has got to go now. वो कहता है कि अब मुझे जाना है. Lamb says that there is nothing to be afraid of. डरने की कोई बात नहीं है.
Derry asserts that he is not afraid of anyone, rather people are afraid of him. तो डेरी उसे बताता है कि मैं नहीं डरता बल्कि लोग मेरे से डरते हैं। क्यों डरते हैं? Slowly he opens up and tells the old man how people stare at him because he has a half burnt face due to acid burns. वो बताता है कि लोग उसको जो हैं बड़े घूर घूर के देखते हैं क्योंकि उसका चेहरा जो एसिड से जल गया था। He says that he is so ugly that people neglect him totally. वो इतना बदसूरत है कि लोग उसे neglect करते हैं। Even his parents make him conscious of his disability by showing extra concern and pity. उसके पेरेंट्स भी हैं, वो उसकी ज़्यादा ध्यान करके केयर करके एक्स्ट्रा कंसर्न करते हैं, वो उसको रियलाइज करवाते हैं। लैम ट्राइज टू कन्विंस हिम दैट हिज डिसेबिलिटी इज़ नॉट एज सीरियस एज ही थिंक्स। लैम उसको रियलाइज़ करवाता है कि उसकी जो डिसेबिलिटी है वो इतनी सीरियस नहीं है जितना कि वो सोच रहा है। इन फैक्ट ही इज़ अफ्रेड ऑफ पीपल। सही देखा जाए तो वो लोगों से डरता है। ही शुड गिव अप बोदरिंग अबाउट अदर्स। मिस्टर लैम गाइड हिम कि यू शुड नॉट बोदर अबाउट द अदर्स। ही पॉइंट्स आउट दैट ही हिमसेल्फ लॉस्ट ए लेग इन द वॉर। मिस्टर लैम उसे एग्जाम्पल देता है कि उसकी खुद की एक लात जो है वो वॉर में उड़ गई थी। ही हैज़ ए टिन लेग एंड वॉक्स विद ए लिम्प। उसकी एक टिन की लेग है, वो लंगड़ा कर चलता है। डेरी सेज दैट ही कैन हाइड हिज लेग बट ही कैन नॉट हाइड हिज फेस। डेरी कहता है कि आप अपनी लात को छुपा सकते हो लेकिन मैं अपना चेहरा नहीं छुपा सकता। नो गर्ल विल एवर फॉल इन लव विद हिम, नो वन विल किस हिम। When Derry says that nobody loves him, so when at that time Mr. Lamb gave him example that if nobody will kiss you, if you want to love someone else, then he says that no girl will ever fall in love with me. कोई लड़की मुझे प्यार नहीं करेगी। इवन हिज मदर किसेज हिम ऑन द राइट साइड ऑफ हिज फेस। वो कहता है कि किस की बात अगर करो तो मेरी खुद की जो मदर है, जो राइट साइड फेस है, बिल्कुल ब्राइट फेस है, साफ है, उस पर किस करती है। मेरी मदर भी भेदभाव करती है। ही asserts that he will never look different. वो कहता है कि मैं ऐसा ही दिखूंगा। When he tells Lamb how one day a woman whispered to her companion that he was a terrible thing. वो बताता है कि लोग मेरे ऊपर बैड कमेंट पास करते हैं। एक वुमन ने दूसरी वुमन को कहा कि कितनी भयानक चीज़ है इसका चेहरा देखना। एंड दैट ओनली अ मदर कुड लव सच ए फेस। इस चेहरे को तो सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है। लैम सेज दैट व्हाट ही हर्ड माइट नॉट मीन एज सच। तो लैम उसको कहता है कि जो तुमने सुना है वो तुम्हारी इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है उन्होंने इस तरीके की बात ना कही हो। द वुमन ही सेज माइट हैव सेड समथिंग एल्स। हो सकता है उस औरत ने कोई और बात की हो। व्हेन डेरी सेज दैट ही डज नॉट लाइक बीइंग नियर पीपल हु स्टेयर एट हिम। वो कहते हैं कि मैं उन लोगों के नज़दीक नहीं जाना चाहता जो उसको घूरते हैं। लैम टेल्स हिम द स्टोरी ऑफ ए मैन। लैम एक आदमी की स्टोरी बताता है। हु वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, जो हमेशा हर एक चीज़ से डरता था। द मैन लॉक्ड हिमसेल्फ इन टू द रूम एंड वेंट इन टू हिज बेड। उस आदमी ने अपने आप को लॉक कर लिया और बेडरूम में चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम। मतलब जिस मौत से वो भाग रहा था उसी मौत उसके कमरे में मिली। डैरी रियलाइजेस स्लोली द ओल्ड मैन वांट्स टू टेल हिम डैरी रियलाइजेस स्लोली व्हाट द ओल्ड मैन वांट्स टू टेल हिम। डैरी धीरे धीरे समझने लगा जो डैरी और मिस्टर लैम उसको समझाना चाहता था। लैम सेज दैट द किड्स कॉल हिम लेमी लैम। लैम कहता है कि बच्चे उसको लेमी लैम, लंगड़ा लैम कहते हैं। बट दे कम टू हिज गार्डन, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ हिम एज ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ देम। वो मेरे से नहीं डरते, मैं उनसे नहीं डरता। डैरी वांट्स टू गो बैक वंस। डैरी जब वहाँ से वापस जाना चाहता है। एंड प्रोमिसेस दैट ही विल कम बैक। वो कहता है कि वापस आऊँगा बिकॉज ही हैज़ बिगन टू लाइक द गार्डन, या मुझे गार्डन अच्छा लगने लग गया है। इन हिज एब्सेंस लैम एक्सप्रेसेस हिज डाउट्स बिकॉज नो वन एवर कम बैक्स टू मीट हिम। तो इन हिज एब्सेंस जब वो चला जाता है तो मिस्टर लैम जो है अपने एक्सप्रेशन शो करता है कि नो वन कम्स बैक। हेयर ऑल्सो थीम ऑफ लोनलीनेस हैज़ बीन हाईलाइटेड। नाउ इन द सेकेंड सीन इज एट द हाउस ऑफ डैरीज हाउस। In the second scene, Daddy's mother desists him from
गोइंग बैक टू मिस्टर लैम। डेरी एक्चुअली घर पे कहने के लिए आया है कि वो मिस्टर लैम के पास है, लेकिन डेरी की जो मदर है वो उसको मना करती है, वो कहती है कि तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। शी सेज दैट पीपल से स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट हिम, लोग उसके बारे में अजीब बातें करते हैं। डेरी आस्क हर व्हाट शी इज़ अफ्रेड ऑफ। डेरी उससे पूछता है अपनी मदर से, आप किस चीज़ से डर रहे हो। ही टेल्स हिज मदर दैट ही वांट्स टू गो बैक टू द गार्डन बिकॉज द ओल्ड मैन टेल्स हिम अबाउट थिंग्स नो वन हैज़ एवर टोल्ड हिम एंड दे मैटर। क्योंकि उस ओल्ड आदमी ने मुझे ऐसी ऐसी अच्छी चीज़ें बताई हैं जो आज तक किसी ने मुझे नहीं बताई। इफ़ ही फेल्स टू गो देयर, अगर वो वहाँ नहीं गया तो ही विल नेवर बी एबल टू गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, वो कहीं भी जाने के लायक नहीं रहेगा। इन स्पाइट ऑफ हिज मदर्स प्रोटेस्ट ही रन्स आउट टू गो बैक टू द प्लेस वेयर ही इज़ रियली वांटेड। मदर्स मना करती रही लेकिन वो भाग गया। फिर आता है थर्ड सीन, वापसी उसी मिस्टर लैम के गार्डन में। इन द थर्ड ब्रीफ सीन वी फाइंड लैम अप ऑन ए लैडर टू गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन। हम देखेंगे मिस्टर लैम एप्पल से जो है वो जेली बनाता है बच्चों के लिए, लेकिन जो लैडर के ऊपर चढ़कर वो तोड़ रहा था, सडनली जो है द लैडर फॉल्स बैक, सीढ़ी गिर जाती है, टेकिंग द ओल्ड मैन विद इट। ओल्ड मैन मिस्टर लैम्ब ऑल्सो फेल डाउन। डैरी ओपन्स द गार्डन गेट। डैरी इतने में वहाँ पहुँचता है, गार्डन गेट खोलता है। सेज अलाउड दैट ही हैज़ कम बैक, वो कहता है कि देखो मैंने अपना वायदा पूरा किया, मैं वापस आ गया हूँ। ही फाइंड्स दैट द ओल्ड मैन डेड, वो देखता है कि ओल्ड मैन वो मर चुका था। ही बिगिनस टू वीप एंड क्राइज अलाउड, वो रोने लग गया। ले मी लैम आई डिड, ये देखो मैंने अपना वायदा पूरा किया, कम बैक, मैं वापस आ गया हूँ। So this was the story on the face of it, where Mr. Lamb wants, through Mr. Lamb, the author wants to say that appearances are deceptive. It's a mishappening can happen with anyone at any moment at any place. So we should not hate others' feelings. And there is a message for the persons those who become physically disabled due to mishappening. उनके लिए भी एक मैसेज है जो फिजिकली डिसेबल हो जाते हैं, उनके लिए एक मैसेज क्या है कि उनको जो है बोल्ड बनना चाहिए मिस्टर लैम की तरह। दे शुड नॉट टेक द कमेंट्स ऑफ द पीपल ऑन देयर हार्ट, अपने दिल पे नहीं लेनी चाहिए। दे शुड एन्जॉय देयर लाइफ फुली, ओनली देन दे विल बी एबल टू लिव देयर लाइफ हैप्पीली, अदरवाइज दे विल हैव टू सफ़र लाइक डेरी, नहीं तो उन्हें डेरी की तरह जो है वो परेशान होना पड़ेगा। So I hope you well understood this story. You may read the text to understand better. If you face any problem, you may discuss with me. Thank you. Have a nice day.